دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آپ نے اکثر ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہواؤں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے اور آئندہ چند روز تک ملک میں سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو سائبیریا کہاں ہے جہاں سے یہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا یہ کوئی ملک ہے یا کسی ملک کا کوئی علاقہ؟ وہاں کا موسم کیسا رہتا ہے؟ وہاں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ سائبیریا کے بارے میں حقائق کیا کہتے ہیں اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے؟ یہی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو سوئی ہوئی زمین یا سائبیریا براعظم ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع ایک ریجن ہے جس کا زیادہ تر حصہ روس میں ہے۔ مغرب سے مشرق میں یہ یورال کی پہاڑیوں سے بحر الکاہل تک، جبکہ شمال سے جنوب تک یہ علاقہ بحر منجمد شمالی سے چائنا، منگولیا کی سرحدوں اور قزاقستان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 1,30,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو سائبیریا روس کے 77% یعنی 3/4 سے کچھ زیادہ حصے پر چھایا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائبیریا کا علاقہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اگر یہ کوئی ملک ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑا ملک ہوتا اور انڈیا جتنے 3 ممالک اس میں آسانی سے سما جاتے ہیں۔ سائبیریا ہماری زمین کی خشکی کے 10% حصے کو کور کرتا ہے۔ دوستو سائبیریا اپنے طویل سخت سرد موسم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سردیوں میں پارہ -68 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اوسط درجہ حرارت -40 -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں سال میں 9 ماہ تک موسم سرما کا راج رہتا ہے، جبکہ موسم گرما صرف 3 ماہ کے لیے آتا ہے۔ سال میں تقریباً 6 ماہ تک یہ علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہونے کے باوجود گرمیوں میں سائبیریا کے کچھ علاقے کافی گرم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں اوسط درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ سائبیریا چونکہ دنیا میں اپنے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا سرد ترین مقام یہاں موجود نہ ہو؟ سائبیریا ریجن میں آباد اومیاکون کو دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت -58 -58 رہتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں 1933 میں تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت -68 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق اس قصبے کی کل آبادی تقریباً 500 افراد پر مشتمل تھی۔ اگر شہر کی بات کی جائے تو یاکوتسک کو دنیا میں ٹھنڈا ترین شہر مانا جاتا ہے اور یہ بھی سائبیریا میں ہی ہے۔ یاکوتسک کی کل آبادی تقریباً 3.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سائبیریا میں زیادہ تر لوگ گھر لکڑی سے بناتے ہیں اور انہیں سطح زمین سے اونچا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ برف باری میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں کی سیر کو جانے والے لوگ اپنی گاڑیوں کو سٹارٹ ہی رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول سخت سردی کی وجہ سے جم جائے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو سکے۔ یہاں سردی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ گرم پانی کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو نیچے گرنے سے پہلے ہی جم جاتا ہے۔ دنیا میں سائبیریا کی نیلی آنکھ کے نام سے مشہور جھیل بیکال بھی اسی ریجن میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین جھیل ہے جو آج بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جھیل 2.5 سے 3 کروڑ سال پہلے سے موجود ہے۔ یہ نہ صرف قدیم ترین بلکہ دنیا میں سب سے لمبی اور گہری جھیل ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس کی لمبائی 636 کلومیٹر ہے اور اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو یہ 5318 فٹ 5315 فٹ گہری ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دنیا میں تازہ پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دنیا میں کل تازہ پانی کا 20% اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ جھیل تقریباً 330 چھوٹے بڑے ندی نالوں اور دریاؤں کی آخری منزل ہے، جبکہ اس سے نکلنے والا دریا صرف ایک ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مقامی آبادی اسے سمندر ہی سمجھتی ہے۔ جب شدید ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ جھیل 5 سے 6 ماہ تک مکمل طور پر منجمد ہو جاتی ہے اور جھیل کی فضاؤں پر سرد ہواؤں کا راج ہو جاتا ہے۔ ان دنوں درجہ حرارت بھی -40 سے نیچے گر جاتا ہے۔
जब ये झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाती है तो आसपास के इलाकों तक पहुंचने के लिए लोग इसी झील को बतौर ट्रैफिक रूट भी इस्तेमाल करते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, चलिए यहीं पर आपको ये भी बताते हैं कि साइबेरियन हवाएं कैसे वजूद में आती हैं। मौसम सरमा में जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से काफ़ी नीचे गिर जाता है तो उस वक्त झील बेकाल और इस पूरे साइबेरियन रीजन में सर्दी अपनी इंतहा को होती है। इसके साथ साथ हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्द हवाओं का एक एंटी साइक्लोन वजूद में आता है जिसे साइबेरियन हवा या साइबेरियन हाई भी कहा जाता है। ये हवाएं जब साइबेरिया से उठती हैं तो इनका दायराकार जनूबी एशिया के साहली इलाकों तक वसी हो जाता है। ये हवाएं शदीद ठंडी होती हैं और पूरे जनूबी एशिया को सर्दी की लपेट में ले लेती हैं। पाकिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे की एक वजह यही हवाएं हैं। योराल की पहाड़ियों, सनोबर के जंगलों, 8 टाइम जोन्स और फितरत के हज़ारों हैरत में मुब्तला कर देने वाले नज़ारों से गुजरता रेलवे ट्रैक भी साइबेरिया से ही गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक रूस के मगरबी शहर मॉस्को को रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्टोक से मिलाता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 9,288 किलोमीटर है। ये आज तक दुनिया में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है जो 1891 में शुरू हुआ और 1916 में मुकम्मल हुआ। अगर आप मॉस्को से व्लादिवोस्टोक इसी रेलवे ट्रैक के जरिए सफ़र करें तो फितरत के तकरीबन सभी हसीन मनाजिर को देखने के लिए आपकी 6 रातें और 6 दिन सर्फ होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सफ़र कर लें तो यकीनन आप कह सकते हैं कि आपने पूरा रूस तकरीबन देख लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जनूबी साइबेरिया में बर्फपोश पहाड़ों के दामन में एक सहरा भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सहरा गर्म नहीं बल्कि ठंडा है। यहाँ आपको ऊंट नहीं बल्कि पोलर डियर्स मिलेंगे। सरमा में होने वाली बर्फबारी इस सहरा को भी अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है। साइबेरिया में मौसम गर्मा का जब आगाज़ होता है और इस सहरा से बर्फ़ पिघल जाती है तो बर्फपोश पहाड़ों से घिरा ये सहरा इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करता है। दोस्तों, साइबेरिया की जोग्राफियाई और मौसमी खसूसियात हमेशा से ही इसकी तरक्की की राह में रुकावट रही हैं, लेकिन ये रीजन रूस के लिए हमेशा से स्ट्रेटजिकली इंतहाई अहम रहा है। ये इलाका अपने सख्त मौसम की वजह से हर तरफ से किसी भी किस्म की दरअंदाजी से महफूज रहा है। अगरचे ये इलाका साल के ज़्यादातर हिस्से में सख्त सर्दी की लपेट में रहता है और जमा हुआ भी रहता है, जिसकी वजह से इसकी आबादी इंतहाई कम है, लेकिन ये इलाका रूस के लिए माशी एतबार से इंतहाई अहमियत रखता है। रूस के तकरीबन 70% तेल और गैस के ज़खायर साइबेरिया के इलाके ही में पाए जाते हैं। रूस साइबेरिया से हासिल होने वाली गैस की बदौलत ही इस वक्त दुनिया में कुदरती गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप के अक्सर ममालिक गैस के लिए सिर्फ रूस पर ही इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में निकल, गोल्ड, डायमंड, लेड और कोयले के बहुत बड़े ज़खायर भी पाए जाते हैं जो रूस को इन तमाम मादनियात का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में निकल के मालूम ज़खायर का 40% साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया अगरचा रूस के 3/4 रकबे पर फैला हुआ है, लेकिन इस इलाके में आबाद लोग रूस की कुल आबादी का महज 23% है। यहाँ पर आबादी के कम होने की वजह भी जाहिर है यही है कि यहाँ के सख्त मौसम को झेलना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं। ऐसे में यहाँ आबाद लोगों में से भी अक्सर रूस के मगरबी इलाकों या किसी दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत कर जाते हैं। दोस्तों, अगरचे साइबेरिया में आबादी कम है और यहाँ आबाद लोग किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन 1960 की दिहाई 1960s में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की सर्द जंग जारी थी और हालात ठीक नहीं थे, तो साइंसदानों की एक टीम अपनी फिक्री आज़ादी के लिए मगरबी साइबेरिया के एक इलाके में चली गई थी और अपनी तहकीकी सरगर्मियों का यही आगाज़ कर दिया था। आज वहाँ 2.5 किलोमीटर के इलाके में 20 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। इस गली को स्मार्टेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, साइबेरिया न सिर्फ कुदरत के हसीन मनाजिर से माला माल है, बल्कि इन्हीं मनाजिर को 4 चांद लगाने वाले नायाब नस्ल के जानवरों का मस्कन भी यही है।
साइबेरियन टाइगर साइबेरिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे मशहूर जानवर है और ये टाइगर स्पीशी का सबसे लंबा जानवर है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इस पर भी मादूमियत के एक्सटिंक्शन के खतरात मंडला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ चंद 100 तक रह गई है। इसके अलावा साइबेरियन हिस्की और बिल्लियों और पोलर डियर जैसी बेशुमार जंगली हयातियात की इकसाम यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ आपको एक और अजीबोगरीब वाक़े के बारे में भी बताते हैं। 1908 में मशरकी साइबेरिया के तेगा रीजन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करोड़ों दरख्तों का सफाया हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये धमाका 1945 में जापान पर गिराए गए एटम बम हमलों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। उनका ये भी कहना है कि ये धमाका किसी सैयारचे की वजह से हुआ था जो खला में ही फट गया और इससे खारिज होने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस इलाके में तमाम दरख्त जल गए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के बाद क्या आपके दिल में भी ये उम्मीद जागी है कि झील बेकाल की मुंजमद सतह पर आप सफ़र करें या गर्मी के मौसम में दुनिया की इस खूबसूरत तरीन ताज़ा पानी की झील को देखें? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर आप साइबेरियन रेलवे का सफ़र करना चाहते हैं तो भी बताइए। शुक्रिया।